Okay, so without wasting the time, just we'll see the numericals which we are going to continue last time. Yes, I think we have done with the 14 numericals. Okay, so see the next one. Okay, just read this first. 15th वाला न्यूमेरिकल एक बार पढ़ो फटाफट. A solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has winding of 1000 turns and okay, and carries the current of 5 ampere. Yes, calculate the magnetic field at its center along the axis. Okay, तो देखो simple सी question है. We have this solenoid which is of length pi meter and it's 5 centimeter in diameter. तो रेडियस दिया हुआ है सोलोनॉइड का और एट द सेम टाइम लेंथ भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है और करंट भी उसके अंदर का दिया हुआ है. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोलोनॉइड जो है तो इट्स लुक्स लाइक दिस. तो ये समझो सोलोनॉइड है और इस सोलोनॉइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है तो वो उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I. But here you are not to forget that the B here, sorry, N here, N मतलब number of turns जो per unit area होता है. Simply number of turns नहीं बल्कि number of turns per unit length, ये small n कहलाता है. तो अगर ये फॉर्मूला जो है वो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा that is simply B is equal to mu naught into N upon length L into I. करेक्ट है. जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा देखो ठीक से तो इट विल बी B which is equal to mu naught के बदले हम डाल सकते हैं 4 pi and that is multiplied by 10 raised to minus 7 and multiplied with number of turns which is given here to be 1000, right? So here it is going to be 10 raised to 3 actually, and that is to be multiplied with current which is given to be 5 ampere here, so that we can just replace it by that 5, and that is to be whole divided by number of length of this wire which is going to be pi. It's already in meter so no need to convert, so it will be pi simply. चलो ठीक है तो ये बन गया हमारा pi. Yes. But we can understand here that nowhere we are going to get this diameter of the solenoid. सोलेनॉइड का जो डायमीटर है तो वो हमको यहाँ पे किधर भी यूज नहीं हो रहा है. ठीक है. और ये सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर मतलब ये जो पाई मीटर जो दिया हुआ है वो सोलेनॉइड का ही लेंथ दिया हुआ है. तो इट्स ओके, देन वी कैन यूज इट एज इट इज हियर and just solve this further. So pi will get cancelled and we'll be left with 4 into 5 which is 20. So here it is going to be 20 into 10 raised to how much it is minus 4. Okay, so 20 into 10 raised to minus 4 means it is 2 into 10 raised to minus 3 Tesla. Okay, Tesla, or we can say 2 into 10 raised to minus 3 Weber per meter square. It's one and the same thing, remember. Okay, this is also the unit of magnetic induction. Okay, let us see the next one. Yes, just read this first.
Okay, the toroid of narrow radius of 10 centimeter has 1000 turns. For the magnetic field of 5 into 10 raised to minus 2 Tesla along its axis, how much current is required to pass through this wire? Okay, it's again very easy because toroid also, for the toroid also, we have the formula for magnetic induction, which is given by V is equal to mu naught into Ni, where N stands for number of turns per unit length again. But in case of the toroid कैसा होता है? ये देखो ऐसा होता है. बराबर है. और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो लेंथ है वो उसका सर्कमफरेंस बन जाता है. ठीक है ना? The circumference of this toroid will be the length. So that's why the number of turns per unit length will be expressed as number of turns, that is capital N, upon the length of the toroid, which is going to be the circumference, which is actually equal to 2 pi into r, where r is actually the radius of this toroid. Okay, so if you put all these values here, then we can get this as mu naught into n. N के बदले क्या आएगा? Number of turns per unit length, मतलब ये capital N upon 2 pi into capital R, correct? And that is multiplied with current, that is I here. Okay, so this B can be finally written as, okay, mu naught, which is going to be 4 pi into 10 raised to minus 7, which is already we have, and that is to be multiplied with number of turns. Check how many number of turns are there. It's 1000, correct है? So यहाँ पे 1000 हमको डालना है, जिसको हम 10 raised to 3 भी लिख सकते हैं, no problem. And finally current जो है, तो इस करंट के इसके अंदर जो करंट जाने वाला है वो हमको निकालना है. See here, what current should be passed through the wire, वो हमको निकालना है. इसलिए करंट को हम as it is रखेंगे. It's going to be a unknown variable, and that is to be whole divided by this 2 pi r. So keep this 2 pi as it is, so that it will get cancelled with this 4 pi, and r, that is the radius of this toroid, will be replaced here. तो देखो यहाँ पे the radius is going to be 10 centimeter. Okay, so 10 centimeter उसका radius दिया हुआ है. So we can just use it here, and again don't forget to convert it in meter. So it's going to be actually 10 into 10 raised to minus 2 meter. Okay, and B जो है, तो ये B कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी हमको रिप्लेस करना चाहिए था actually. Just replace it now. So B is actually going to be 5 into 10 raised to minus 2 Tesla, correct है? So just replace it here, 5 into 10 raised to minus 2. Yes, and then just we can have this 2 pi cancelled with this 4 pi, and 2 will be left behind. And in the next step we can just simplify this as all these quantities can be written taken in that side. तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5 into 10 raised to minus 2 इस तरफ आ गया. ये जो 10 है नीचे वो भी उस तरफ भेज दिया, तो ये बनेगा इधर 10. ये जो 10 raised to minus 2 है उसको भी उस तरफ भेज दिया, तो ये बन गया 10 raised to minus 2 here. ये जो 10 raised to ये जो 2 है इधर, तो उसको नीचे भेज दिया उधर डिनोमिनेटर में. ये देखो ये 2 नीचे आ गया, और फिर ये जो 10 raised to minus 7 है उसको भी उस तरफ भेज दिया डिनोमिनेटर में. This is going to be 10 raised to minus 7 and multiplied with this 10 raised to 3 also is put in the denominator in that other side, so that we get this 10 raised to 3, and that is going to be equal to I, right? Yes. Okay. Just try to solve this further and see what we get here is I is equal to, तो 5 upon 2.5 कितना मिल रहा है, सॉरी 5 upon 2 कितना मिल रहा है, 2.5 मिल रहा है, बराबर. ये बन गया 2 5s are 10 if we cut 10 from there. हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं एक्चुअली. चलो ठीक है, वैसा करते हैं. तो ये 2 and this 10 will be get cancelled, and we'll be left with 25, and बाकी जो है 10 के पावर्स देखो ठीक से क्या आ रहा है. यहाँ पे 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4 becomes 10 raised to minus 4, and in the denominator also we are 10 going raised to minus 4
10 raised to minus 4, which will get cancelled again, and we'll be left with simply 25, that is in ampere, because it's a current. That's it. चलो ठीक है, go to the next. Yes, just read this. In a cyclotron, protons are to be accelerated. The radius of its d is 60 centimeter, and this oscillator frequency is also given, that is to be 10 megahertz. What would be the kinetic energy of the proton thus accelerated? Yes, ready-made formula we have already for the kinetic energy of the proton accelerated through this cyclotron. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, याद होगा आपको, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर. यहाँ पे याद रखो ये कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डी. ओके, and that is to be divided by this 2m in this way. So if we just put all the values here, then we can be able to solve this further. So q के बदले क्या रखना है हमको? Charge on proton, which is going to be 1.6 into 10 raised to minus 19 here. Okay, so this is 1.6 into 10 raised to minus 19, and uska square. Yes, and then we can just put this b here. b मतलब क्या है? Magnetic induction, right? Okay, तो magnetic induction किधर है? What would be the kinetic energy? Yes, magnetic induction is not given actually. So yes, that means we will have to modify this formula for b. Let us check b के लिए क्या और यूज कर सकते हैं. ये देखो, रेडियस का फॉर्मूला हमको मिलता है, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप होता है, आपको याद होगा, जो कि mv स्क्वायर अपॉन r और qvb, इन दोनों को इक्वेट करने से हमको मिलता है. तो ये v कैंसिल हो गया, तो इससे हमको मिलेगा mv अपॉन r इज इक्वल टू q इंटू b, करेक्ट, जिससे b का वैल्यू हमको मिल जाएगा आराम से, जो कि बनेगा mv अपॉन qv. बट वेलोसिटी तो भी दिया है क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी दिया है ना. ओके, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फिर हो गया हमारा काम, क्योंकि देखो we can express this kinetic energy in terms of frequency. See how kinetic energy is actually equal to half mv square, right? And v can be written to be आपको अगर याद होगा, पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t is equal to 2 pi r upon v, right? तो इससे हम v का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, that is 2 pi r upon t. But as we know that this 1 upon t is going to be frequency, so we can express it as v is equal to 2 pi r into f, where f stands for frequency. So this is the formula for velocity of the proton, which can be placed here. So ये v equal to 2 pi r into f, ये वाला फॉर्मूला अगर हमने डाल दिया इधर ये वेलोसिटी के बदले, तो उससे हमको ये मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी k, which is equal to half m into v square, where v can be written to be equal to 2 pi r f and the whole square. Yes, so we get this kinetic energy k to be equal to half into m into, अभी 2 pi का स्क्वायर बनता है 4 pi square, right? And here it is r square and f square as it is, so that can just simplify this further and get it as
k is equal to ये 2 कैंसिल कर दो तो हमको मिलेगा 2m pi square into r square into f square. And now just put all the values which are given here. Mass of the proton, it's given already here. See it here, 1.67 into 10 raised to minus 27, right? So here it is 1.67 into 10 raised to minus 27 into pi square, which is actually 3.14 ka whole square, right? And that is multiplied with, yes, r square. रेडियस उसका कितना है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर? तो 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर. सो यू कैन जस्ट पुट इट हियर 0.6 और उसका भी स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड with this frequency square. So frequency is given to be 10 megahertz. But don't forget that megahertz means 10 raised to 6 hertz. तो 10 into 10 raised to 6 मतलब कितना हो गया? 10 raised to 7 हो गया एक्चुअली. तो इसलिए यहाँ पे हमको 10 raised to 7 डालना पड़ेगा. उसका भी स्क्वायर करना है, वो भी भूलो मत. तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो देखो हमको क्या मिलेगा. 2 into 1.767 into 3.14 का स्क्वायर कितना होता है पता है सबको? It has to be 9.42. check. Sir, 9.8596. 9.8596 मतलब 9.86 ही हो गया ऑलमोस्ट. चलो ठीक है. और बाकी 0.6 का जो स्क्वायर है तो वो तो हमको पता है ऑलरेडी 0.36 बन जाएगा. एंड बाकी 10 के जो पावर्स है वो कलेक्ट करो फटाफट. ये देखो 10 raised to 7 का स्क्वायर क्या बन रहा है? 10 raised to 14, and this 10 raised to minus 27 just adds up to it and becomes 10 raised to minus 27 plus 14 मतलब 10 raised to minus 13, right? So this is going to be 10 raised to minus 13. Okay, then just solve this further. ये कैलकुलेशंस करो फटाफट कैलकुलेटर से. अच्छा, और एक बात, ये हमको आंसर जो है ना वो इधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और वहां पे इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन भी लेके रखा है. ओके, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल है, तो ये जो पूरा आएगा काइनेटिक एनर्जी वो जूल में आएगा, बराबर? जूल में. सो वी कैन से दैट 1 जूल इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो ये हो गया जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में का कन्वर्जन. अभी ये जूल में जो आ रहा है तो उसको अगर हमको सपोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ये पूरा जो है इसको सीधा डिवाइड करना पड़ेगा इस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 से. ओके, एंड देन विल गेट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? एक्चुअली वी वांट इट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट चलो ठीक है, वो मेगा का हम देखेंगे बाद में. अभी ये पूरा करो वर्कआउट. डू यू हैव द कैलकुलेटर और आई शुड यूज इट? 11.855. ओके, तो 11.855 that is multiplied with 10 raised to minus 19 goes up, becomes plus 19, plus 19 minus 13 becomes 6, and hence it becomes 10 raised to 6 electron volt. And as we know that 10 raised to 6 matlab mega. 7.40 divide. Sir, that 11.855 needs to divide by 1.6. तो पूरा बताओ ना फिर. It's 7.40. Okay, 7.40 into 10 raised to 6 electron volt. And as we know that this
is 10 raised to 6 electron volt means mega electron volt, and hence we can get it as 7.4 mega electron volt. That should be the answer. Yes, it's approximately correct. Yes. So let us see the next one. अभी इसके लिए यहाँ पे जगह तो नहीं है, उसको इस तरफ ले लेंगे. Just read this fast. A wire loop of the form shown in the figure carries the current I. Obtain the magnitude and direction of the magnetic field at point P. Okay, देखो ठीक से, फिर से मैं रीड करता हूँ. एक जो लूप है इसके अंदर इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है. देखो दिख रहा है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका करंट फ्लो हो रहा है. यस, and here we want to find out the magnitude of and direction of the magnetic field at point P here. Okay, that means we have to resolve this problem in two parts. दो parts में इसको हमको resolve करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देखो ये जो shape हमको दिख रहा है, तो वो आधा मतलब कुछ part, उसका जो एक part जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो part हमको दिख रहा है ना, वो actually circular coil का जो part है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट हमको दिख रहा है वो एक्चुअली स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर का पार्ट है. और हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले हैं. ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे जितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है वो निकालने के लिए अलग फॉर्मूला हमारे पास है, और स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो निकालने के लिए हमको हमारे पास अलग फॉर्मूला है. करेक्ट है? तो इसलिए हमको इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना होगा. लेट अस सी द पार्ट 1. okay, part 1 of this problem, in which we will try to find out the magnetic induction at the center of this circular arc which starts from this point and up to this point here. okay, तो ये जो सर्कुलर आर्क है, ये देखो ठीक से, ये तो पूरा आर्क हो गया. बट इफ यू सपोज ठीक है, जस्ट इमेजिन यस, इधर से इधर तक कुछ भी नहीं है, ऐसा इमेजिन कर लो. और ये जो 270 डिग्री एंगल सबटेंड करने वाला जो आर्क है, तो उसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. बराबर है? हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला देखा है सर्कुलर आर्क की वजह से. ये सपोज एक सर्कुलर कॉइल है और उसका एक आर्क है सपोज ये वाला, तो इस थीटा एंगल सबटेंड करने वाले आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है सेंटर पे, वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट into I upon 2r, and this should be multiplied with theta upon 2 pi. याद है आप सभी को? और we can say simply theta upon 2 pi into mu naught I upon 2r. okay, and theta must be in radian. okay, but if suppose this theta is in degrees, then also we have another formula, that is theta upon 360. okay, the theta upon 360, and that is multiplied with this full magnetic induction, that is mu naught I upon 2r, which is a magnetic induction due to a circular coil, complete coil. yes, so now we can just use this formula here and get the magnetic induction B1. B1 मतलब ये जो सर्कुलर आर्क की वजह से जो फॉर्मूला हमको मिलता है तो उसको हम बोलेंगे B1, which is actually going to be theta upon 360 into ब्रैकेट में आएगा mu naught I upon 2 pi, sorry 2r. yes,
where theta is to be replaced by 270 just because this is 90 here, करेक्ट है? ये जो बचा हुआ जो एंगल है वो 90 है, इसलिए ये जो पूरा पार्ट है इस पार्ट का जो एंगल बनता है तो वो हमको कंसिडर करना है, जो कि 270 है यहाँ पे। सी हियर दिस 270 एंगल का जो पार्ट जो है तो वो हमको कंसिडर करना है इधर, और वो पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है सेंटर पे वो हम निकालने वाले हैं इस फॉर्मूला से। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है यहाँ से इधर से लेके इधर तक का जो पार्ट है वो थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा वो हम बाद में निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है सर्कुलर पार्ट नहीं है ना, दैट इज एब्सेंट हियर, एंड दैट्स व्हाई 90 डिग्री का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो यहाँ पे पैदा नहीं होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा वो सिर्फ 3/4 होगा। वही बात हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ 270 आने वाला है। 270 को अगर 360 से डिवाइड कर दो और ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एज इट इज रख लो, तो वो सॉरी 2r ओनली, अगेन डोंट मेक अ मिस्टेक। यस, तो 270 और 360 का फ्रैक्शन कितना बनता है तो वो हमको पता है ऑलरेडी, इट बिकम्स 3/4, राइट? सो हियर इट इज 3/4 इनटू म्यू नॉट आई upon 2r. Yes, so this is given as equation number 1. चलेगा? तो ये हमारा equation number 1 हो गया। ठीक है, you have found out the magnetic induction due to this circular part, circular arc. Okay, yes, now we'll see focus on this finite current carrying conductor. अभी हमको ऑलरेडी एक फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उससे एक r डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बना हुआ है b विच इज इक्वल टू, अभी उसमें भी क्या है ना कि ये जो एंगल्स बनते हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो एंगल करते हैं इसके साथ, वो एंगल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इन एंगल्स को हम बोल सकते हैं आराम से दैट this angle is actually going to be suppose alpha and this angle is going to be actually beta। तो ये एंगल अल्फा बीटा होने से हमारे पास फॉर्मूला जो मिलता है वो ये ऐसा है कि म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई ए या 4 पाई आर इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, करेक्ट है? इसमें ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि whenever this alpha and beta both become 90, then immediately we get the infinite conductor whose magnetic induction becomes equal to mu naught I upon 4 pi r as it is, and sin alpha and sin beta both become 1 plus 1 each, which becomes 2 actually, and hence that 2 just gets cancelled with this 4 left behind here, and we get this formula for magnetic induction due to the infinite state current carrying conductor, that is mu naught I upon 2 pi r, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, याद है? तो इसलिए चलो ठीक है, ये अभी इनफाइनाइट कंडक्टर का तो हमको नहीं चाहिए, फाइनाइट कंडक्टर का ही चाहिए। तो फाइनाइट कंडक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये है, याद रखो ठीक से। अभी ये फॉर्मूला हमको लगाना है इधर, ये देखो इस पार्ट के लिए दिख रहा है। तो लेट अस कट दिस पार्ट, आइसोलेट दिस पार्ट हियर। सपोज ये पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे आइसोलेट किया, ठीक है? और ये जो पॉइंट है P जिसको बोल सकते हैं, तो इस पॉइंट P पे ये जो एंड पॉइंट्स है ना इस पार्ट के, वो कितना एंगल कर रहे हैं देखो ठीक से। देखो ये इस टाइप का ट्रायंगल हमको मिल रहा है यहाँ पे, एंड हियर इन दिस ट्रायंगल दिस एंगल इज एक्चुअली राइट एंगल, करेक्ट है? ये 90 डिग्री एंगल है और ये रेडियस है। ओके, अच्छा रेडियस कैपिटल आर दिया है क्या? चलो ठीक है, फिर अब ऐसा करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर वाले जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी स्मॉल आर के बदले जिधर भी स्मॉल आर दिखता है तो उसके बदले हम वहाँ पे कैपिटल आर डाल देंगे, चलेगा? तो ये देखो ये स्मॉल आर हटा दिया इधर से, स्मॉल आर इधर से भी हटा दिया, इधर से भी हटा दिया, ठीक है? तो जहाँ पे भी स्मॉल आर हमको दिख रहा है तो उसके बदले हम यहाँ पे कैपिटल आर डालते जाएंगे, जिससे हमको ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर मिलेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज गिवन टू बी कैपिटल आर। यस, so this is the capital R, that is radius. Okay, but in order to find out the magnetic field at this point here, we will require this distance here, right? ये distance हमको चाहिए actually. How will you find out that? Yes, how will you get this distance? ये जो vertical distance है ये कैसे ढूंढ के निकालेंगे? उसके लिए हमको एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री है
और ये सर्कल का ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम ही हो गए, तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइटेंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइटेंगल के अंदर हमको पता है ऑलरेडी कि ये जो एंगल्स होते हैं नहीं, ये जो 90 डिग्री को छोड़ के जो बाकी दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा 45 डिग्री के बनते हैं। अगर ये 45 है तो ऐसे में हम यहाँ पे 45 90 वाला थ्योरम लगा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि एवरी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल, मतलब ये और इवन ये भी, it will be actually 1/√2 times of the hypotenuse. So this is actually going to be 1/√2 times of r. This also is going to be 1/√2 times of r. And ultimately this side, ये जो vertical side है वो भी 1/√2 times of r ही मिलने वाला है। लेकिन याद रखो ये जो साइड है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यही हमको चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर। देखो क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमको ये r जो है इसको हमको स्मॉल r बोल के यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर इधर यूज करना है, समझा ठीक से। तो ये स्मॉल r जो है तो वो कितना रहने वाला है यहाँ पे, ये 1/√2 r के बराबर रहने वाला है और वो हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो लेट अस डू दैट। सो व्हाट वी गेट हियर इज इन द नेक्स्ट स्टेप B2 उसको हम बोल देंगे, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर, ओके, which is actually going to be equal to mu naught into I upon, देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इधर, ठीक है, तो जिससे हमको मिलेगा mu naught I upon 4 pi small r. Don't forget that this small r is going to be actually this 1/√2 r, okay। तो ये हम एक्चुअली निकाल भी सकते हैं सेपरेट, यहाँ पे लिख के रखेंगे, यहाँ पे small r is actually going to be 1/√2 times of r, capital R, okay। So we'll just put it there later, and here it is multiplied with this sine of alpha. What is alpha here? देखो ये एंगल एक्चुअली यहाँ पे अल्फा बनेगा जो कि 45 है, और ये एंगल एक्चुअली बीटा बनेगा क्योंकि वो 45 ही है, वो भी 45 है एक्चुअली। और इसका रीजन यही है कि ये जो पॉइंट जहाँ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना होता है, वो पॉइंट को अगर हम वायर के एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कितना एंगल करता है इस मिड पॉइंट के साथ, मतलब परपेंडिकुलर वाले लाइन के साथ, उसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये है कंडक्टर और ये है पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, तो ये कंडक्टर के एंड पॉइंट के साथ ये दोनों लाइंस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों लाइंस इस के साथ मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल करते हैं, तो वो 45 है, इसलिए यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इज गोइंग टू बी 45, एंड इफ वी रिप्लेस देम हियर इन दिस फॉर्मूला then we are going to get it as sine 45 plus sine 45 again in the bracket, and if we solve this further then this B2 becomes actually equal to mu naught I upon 4 pi into r, okay, but don't forget that what is r, this r is actually, see here, 1/√2, okay, capital R, so just replace it here, that means you can write it as r/√2 simply, right, ये बन गया r/√2, okay, and that is to be multiplied with this sine 45 plus sine 45, which is actually going to be 1/√2 plus 1/√2, which happens to be 2/√2, okay। So in the next step we can get this as mu naught I upon, अच्छा ये √2 को ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे बन जाएगा mu naught I √2 upon, here it is going to be 4 pi r simply, and that is to be multiplied with this 1/√2 plus 1/√2, which is 2/√2, so that here we can see clearly this √2 will just get cancelled from the numerator and denominator, and what we are left with here is simply mu naught I 2 mu naught I, अच्छा वो 2 भी cancel हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 1s and 2 2s, so that we can get this mu naught I upon 2 pi capital R. Yes, so this is actually going to be this B2 here, and then we are going to get add this 2, तो यहाँ पे जो हमको मिला B1 का जो वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पे, और ये B2 का जो वैल्यू हमको मिल रहा है इधर नीचे, ये दोनों को हमको ऐड करना होगा। बिल्कुल, क्यों ऐड करना होगा उसका भी रीजन है, देखो यहाँ पे अगर देखते हो ठीक से तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है P पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा जरूर,
इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. ओके, राइट हैंड रूल अगर हम यूज करते हैं तो इस तरह से अगर राइट हैंड के फिंगर्स हम टर्न करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा थंब किधर जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा. और एट द सेम टाइम इफ वी अप्लाई द राइट हैंड रूल हियर ऑन दिस स्ट्रेट कंडक्टर हियर, तो स्ट्रेट कंडक्टर के डायरेक्शन में अगर हम सपोज थंब अरेंज करेंगे तो हमारे कर्व फिंगर्स कौन से डायरेक्शन पॉइंट आउट करेंगे, फिर से पी के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन ही पॉइंट आउट करेंगे. And that's why both of these magnetic inductions are going to be directed inwards, and that's why the net magnetic field here will be actually the sum of the B1 and B2, where B1 is going to be the magnetic induction produced due to the circular coil in the form of an arc, and B2 is the magnetic induction produced due to the finite straight conductor. So B1 is going to be actually 3/4 times of mu naught I upon 2r, right here. And here B2 is going to be, we have found it out here, mu naught I upon 2 pi r. Just remember it. So it's going to be mu naught I upon 2 pi r. Okay, so what can we take common from both of these terms? We can get mu naught I upon 2r common, correct hai? Nothing else. Mu naught I upon 2r can be taken out, and then what we are left inside is just simply three by 4 plus 1 upon pi. Okay, just try to take pi also common, but where is this root 2 is appearing here? Just check. No, that root 2 will not appear actually, because यहाँ पे एक तो 1 by root 2 plus 1 by root 2 जो है, तो वो तो 2 by root 2 बन रहा है, और ये 4 pi into स्मॉलर होता है, जो स्मॉलर यहाँ पे r by root 2 के बराबर बन रहा है, जो ऊपर जाके root 2 और into root 2 मिलके 2 बन जाता है, और वो 2 यहाँ पे कैंसिल होके mu naught upon 2 pi r बनता है. बिल्कुल, शायद उन्होंने सॉल्व करने के टाइम यहाँ पे ये जो स्मॉल r है उसको r by root 2 नहीं लिया है, इसलिए उनका यहाँ पे root 2 बच रहा है. Okay, so just they have made a mistake. Let us take this pi also out, so that we can get this mu naught I upon 2 pi r, and that is multiplied with, अगर pi अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे तो pi डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पे 3 pi by 4 लिखना पड़ेगा इसको, और प्लस 1 लेना पड़ेगा बस. That's all. And if you want to take this 4 pi r out, then यहाँ से 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं आराम से. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाहर लिया तो अंदर में बचेगा सिंपली 3 पाई बाय 2 प्लस, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा. जस्ट 2 आ रहा है यहाँ पे ऊपर में, रूट 2 नहीं, सिंपली 2 आ रहा है. ओके, सो रिमेंबर दिस इज द करेक्ट आंसर. So there is a correction in the question answer given here there in the textbook. Okay, अच्छा इसमें कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट. Yes, just see this whole at a time. Yeah,
दिख रहा है सभी को पूरा? अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो फटाफट। चलो ठीक है, सो नो डाउट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See here, two long parallel wires going into the plane of paper are separated by distance r and carry current I each in the same direction. Show that the magnitude of magnetic field at point P, which is equidistant from the wires and subtending an angle theta from the plane containing the wires, is B is equal to mu naught pi I upon r into sine 2 theta. What is the direction of this field? Okay, so see here, somewhat conceptual question. Two long parallel wires going into the plane of paper and separated by distance r. Suppose that this is the one of the wire and this is another wire, okay, which is going into the plane of paper. अभी जब वो वायर प्लेन पेपर के अंदर घुस रहा है तो इसका मतलब हमको पूरा वायर तो दिखेगा ही नहीं, राइट? और इसलिए हमको वो जो दिखेगा तो वो सिंपली एक पॉइंट दिखेगा, यस, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, और आई इतना करंट वो दोनों कैरी करते हैं। एंड show that the magnitude of magnetic field at point P, which is equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires, is okay. मतलब where should be the point P? It should be somewhere here. See here, यहाँ पे वो होना चाहिए point P जो है। It subtends an angle theta from the plane containing the wires. मतलब अभी ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वायर्स के बीच में डिस्टेंस, वो तो कैपिटल आर दिया हुआ है, नो डाउट, और ये इस प्लेन के साथ जो एंगल ये पॉइंट सबटेंड करता है तो वो एंगल एक्चुअली थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, यस, दिस विल बी द एंगल थीटा, ओके। तो फिर अभी यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है ड्यू टू दिस करंट इन द वायर आई and the current in this another wire which is I again. So what will be the magnitude of magnetic induction at this point P here? How will you find out that? तो उसके लिए सिंपली हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है एक स्ट्रेट वायर जो होता है उसकी वजह से एक r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, याद है ना? तो B is actually going to be mu naught I upon 2 pi r. Suppose r is the distance, right? And this magnetic field is directed inwards into the plane of this figure, because we have to find it out in by right hand rule here. तो राइट हैंड रूल यूज करके हमको ये निकालना होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन। तो अभी वही बात यहाँ पे अगर यूज करते हो तो हमको क्या मिलेगा, देखो। सो इस आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो उसको अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमको एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा जिसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, चाहिए तो जस्ट वेट, सी हियर, इट विल बी इन द डायरेक्शन which is right angles to this line joining this P, and suppose this point is denoted as A, okay, and this is suppose B, yes. So अभी यहाँ पे A और B को परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये देखो ऐसे, okay, this is the direction of magnetic field at point P due to the current in the wire A, yes. And at the same time the magnetic induction due to the current in the wire B here, if you apply the right hand rule once again on this wire B also, तो और दोनों वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, वो याद रखो ठीक से, और वो भी इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, चेक करो एक बार, दिया है क्या, चेक करो, कैरी द करंट ईच इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा वो दिया नहीं है, चलो ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द करंट इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, तो उसकी वजह से इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल तो हमको ये डायरेक्शन मिलेगा। बी के ऊपर अगर हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो हमको जो डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन का, देखो ठीक से, बी के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में, मतलब
इस बीपी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। ये देखो बीपी को परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन मिलेगा, समझा कि ठीक से। So these are the magnetic inductions produced at this point P due to the current in A as well as current in B. Both of these magnetic inductions are going to be in the of the same magnitude. Obviously, why? Because this distance is going to be the same. ये distance अगर हम बोल देंगे small r, suppose इसको भी अगर small r बोल देंगे तो ये distance तो दोनों का same ही है। इसलिए magnetic induction निकालने के लिए जो formula बनेगा तो वो तो हमको वही formula यूज करना पड़ेगा, mu naught I upon 2 pi small r, no doubt। बट इसको हमको डबल करना होगा, नहीं सॉरी नॉट सिंपली डबल, बिकॉज ये मैग्नेटिक इंडक्शन इसको हम बोल देंगे B1 बार, ओके B1 बार। एंड B2 बार जो है, B2 बार का जो मैग्नीट्यूड है तो वो भी इसी तरह कुछ होगा, देखो ठीक से, B2 बार का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इतना ही होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, करेक्ट है। बट एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे प्रॉब्लम कि this B1 bar here, this is B1 bar actually, it is going to be perpendicular to this AP, right? तो इस AP को वो perpendicular है, दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो B2 बार है इधर, ये B2 बार एक्चुअली इस BP को perpendicular है, ये देखो ऐसे, करेक्ट है। इसके कारण यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ऐसा कि B1 बार एंड B2 बार इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम होते भी हमको यहाँ पे इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, बिल्कुल वेक्टर एडिशन हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन अभी वेक्टर एडिशन करने के लिए दो वेक्टर्स का जो सम होता है, वेक्टर सम, सपोज एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है p बार और दूसरे का मैग्नीट्यूड है q बार, तो उन दोनों का जो अगर उनके बीच में एंगल थीटा हो तो उनका जो वेक्टर एडिशन होता है तो उसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, दैट इज r इज इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बट उसमें भी अगर p सेम है तो उसका एक मॉडिफिकेशन हमको मिलता है जो कि सिंपली 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है, जिससे ये हमको मिलता है r is actually equal to 2p square can be taken common and we can take it out, and what we are left inside is 2p square into 1 plus cos theta, which actually happens to be the next step, that is root of 2p square into 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं आराम से 2 cos square theta by 2, करेक्ट है। and hence if we take the square root of whole this thing here, then we can get it as 2p cos theta by 2, okay। but just we want to find out the angle between the two vectors here। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो ये दोनों वेक्टर्स जो सेम मैग्नीट्यूड पे इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास है, नो डाउट। बट the only thing we have to find out here is the angle between these two vectors, how much it is, what do you think? not theta, theta तो चलो ये पूरा एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, बट इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, चेक करो यहाँ पे। how it is 45, ऋत्विक? देखो इट विल डिपेंड ऑन थीटा ना, ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट थोड़े ना रहने वाला है, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा ना जरूर। तो हाउ मच इट विल बी, देखो एक सिंपल सा तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। अगर मान लो हमारे पास एक लाइन ऐसा है और एक लाइन सपोज ऐसा है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर एक्चुअली। तो ये देखो ये सपोज एक लाइन ये लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है। इनके बीच में अगर मान लो एक सपोज 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल है टोटल, यस। अभी इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरफ जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, इट विल बी 30 ऑब्वियसली, राइट। और इसका जो परपेंडिकुलर है वो जाएगा इस तरफ, तो फिर अभी ये एंगल कितना होगा बताओ, वो भी 30 होगा। अभी सोचो इस पूरे 120 में से ये 30 और ये 30 अगर हटा दो तो बचा हुआ जो एंगल होगा वही तो इनके बीच में होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो अभी ये जो हमने किया यहाँ पे वही हमको करना है अभी इन जनरल,
if we have this theta here, then this theta, तो अभी इसकी वजह से इसका जो परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, बराबर। तो ऑब्वियसली ये एंगल फिर कितना होगा बताओ, थीटा माइनस 90 होगा कि नहीं। ये देखो ये बन गया थीटा माइनस 90, जैसे हमने 120 माइनस 90 किया था, 30 मिला था हमको, सेम वही बात हमको यहाँ पे करनी है, थीटा माइनस 90 ये मिल गया। चलो ठीक है, अभी इसका जो परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर जो काम करेगा इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। तो ये एंगल बचा हुआ कितना रहेगा बताओ, अभी फिर से देखो, फिर से वो उतना ही रहेगा, थीटा माइनस 90 ही रहेगा जरूर। ये देखो ये बन गया थीटा माइनस 90, एंड बाय सिमेट्री ऑल्सो ना, सिमेट्री की वजह से वो दोनों एंगल सेम भी रहने वाले हैं। यस, तो अभी यहाँ पे जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने से हमको मिलेगा, इसको अगर सपोज हम बोल देते हैं अल्फा, ओके। तो व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर अल्फा देन, अल्फा विल एक्चुअली बी इक्वल टू दिस टोटल थीटा माइनस, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये दोनों का सम मतलब डबल, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में थीटा माइनस 90, करेक्ट है। ये सॉल्व करो सिंपली आगे, तो बनेगा थीटा माइनस, इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करो तो बनेगा 2 थीटा माइनस 180, करेक्ट है। एंड नाउ वी जस्ट expand this bracket, then we can get it as theta minus 2 theta and minus of minus plus 180, so we can get this as theta minus 2 theta plus 180, which actually becomes 180 minus theta, बराबर है क्या। alpha is actually going to be 180 minus theta, yes, so just remember this correctly and try to apply it here। तो अगर इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, so alpha is going to be 180 minus theta, yes। So if now we use this alpha, alpha is actually equal to 180 minus theta। अभी ये एंगल हमको यूज करना है इधर इस फॉर्मूला के अंदर, तो रिजल्टेंट कितना बनने वाला है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन B is actually going to be equal to according to this formula, see here, यहाँ पे इस R के बदले क्या आने वाला है, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, और P के बदले क्या आने वाला है, magnetic induction produced due to the one of the conductors, right। So here we are going to get it as B is equal to 2 times of B1, मतलब mod of B1 into sine of, ये sorry, cos of, so cos of, here it is going to be alpha upon 2, देखो ठीक से यहाँ पे alpha upon 2, yes, and just simplify this further and get it as B is equal to, अच्छा थोड़ा छोटा करो इसको, okay। So let us solve this further, B is equal to 2 times of B1, अब यहाँ पे देखो B1 क्या है, ये इधर है, which is mu naught upon mu naught I, ये mu naught I upon 2 pi into R, ओके। अभी तक R भी निकालना बाकी है हमको, क्योंकि उन्होंने जो है ये कैपिटल R दिया हुआ है, स्मॉल r तो दिया ही नहीं है, वो भी हमको निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद दिस cos ऑफ अल्फा बाय 2, राइट। सॉरी,
Okay, so here it is going to be alpha. Alpha के बदले क्या रखना है हमको? 180 minus theta upon 2, so that this actually becomes b, which is equal to, ये 2 चलो कैंसिल हो जाएगा, no doubt, and we'll be left with mu naught I upon pi r into, what is this, cos of 180 minus theta by 2, मतलब क्या, 90 minus theta by 2, करेक्ट है, जिससे हमको ये मिल रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन पाई इंटू आर इंटू कॉस, सॉरी, cos 90 minus theta by 2 मतलब ही क्या, sin theta by 2, करेक्ट है, yes, so it will be sin theta by 2. Okay, but now the next job here is to find out this small r in terms of capital R. How will you get that? Small r मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जो साइड है ये कैसे हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा. ओके, उसके लिए हमको ये जो थोड़ा सा सेपरेट काम करना पड़ेगा. देखो ये डायग्राम फिर हम एज इट इज ड्रॉ करते हैं. आपको नेक्स्ट लेक्चर भी है, लेकिन अभी क्या है कि ये पूरा सम वापस बाद में हमको करना पड़ेगा, उससे अच्छा है अभी खत्म कर दे. तो ये देखो, सपोज दिस इज द triangle in which this angle is going to be theta, and suppose this point is A, this point is B, and this is capital R, and we want small r here. So just drop a perpendicular from this point here so that we can get this angle, which is half of this theta divided by that is given by theta by 2, and this angle also the same thing, that is theta by 2. Now if you want to find out the relationship between this small r and capital R here, which are the opposite sides and adjacent hypotenuse of this theta by 2, तो इस थीटा बाई 2 के लिए ये जो साइड है r बाई 2, ये उसका अपोजिट साइड है, और ये स्मॉल r जो है वो उसका हाइपोटेनियस है. तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, जो बनता है साइन थीटा बाई 2 इज एक्चुअली इक्वल टू अपोजिट साइड जो कि r बाई 2 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि स्मॉल r है. इससे हमको ये स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा. देखो, तो स्मॉल r कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू r बाई 2 डिवाइड बाय sin theta by 2, correct, and this value of r, small r, can be used here. तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, it is actually r by 2 sin theta, correct है, 2 sin theta by 2, yes, and then we can just use it here in this formula. याद रखो, it is r by 2 sin theta by 2. Okay, so b is actually going to be mu naught I upon pi into r, r के बदले आ रहा है कैपिटल R upon 2 sin theta by 2. And that is to be whole multiplied with sin theta by 2, kept as it is. And then in the next step, this will be inverted so as to get this as b is equal to mu naught I upon pi into capital R, and this will go up and becomes 2 into sin theta by 2 into sin theta by 2 again, which is going to be actually mu naught I upon pi r into, अच्छा 2 भी यहाँ पे डाल दो, 2 mu naught I upon pi r into sin square theta by 2, mu naught I upon pi r sin 2 theta.
forget about that. ठीक है, let me check and revert back. चलो ठीक है, so we'll stop here.